जी सना बताइए, शुरू करते हैं। जी मैम, एक सेकंड। मैम सिनेरियो है कि 21 ईयर ओल्ड है, फीमेल है, 12 वीक्स विथ HIV पॉजिटिव, हस्बैंड इज इन दुबई एंड 28 years. 21 ईयर ओल्ड फीमेल, 12 वीक्स GA with HIV positive, and हम्म। husband is in Dubai and want to discuss her reports. ओके। 28 years old, आपने ग्रेविडा पैरा नहीं बताया बेटा, प्राइमी ग्रेविडा या नहीं? Yes या madam, primary हम्म, gravida. ठीक है। मैडम मैं एट रोल हाउ प्ले मेनी करूँ? वीक्स? एट हाउ मेनी वीक्स? 12 वीक्स with ओके, HIV positive, and ठीक है। husband is in Dubai, and she want to discuss her raps. ओके, सो इट्स अ काउंसलिंग स्टेशन। जी, ओके जी, काउंसलिंग करूँ शुरू या करें। काउंसलिंग ही सही इसको रहेगा? दोनों तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में ये है कि सब चीजें जरा डिस्कस हो जाएंगी उसकी सिनेरियो के ऊपर, जो हम बेस करते हैं स्ट्रक्चर डिस्कशन, तो उसमें सारी ठीक चीजें है आ मैडम, मैं जाती ऐसे हैं। काउंसलिंग में तो कुछ लिमिटेशंस हो जाती है, लिमिटेशन ऑफ सम इंफॉर्मेशंस, आपने पेशेंट की लैंग्वेज में बात करनी होती है। तो लेट इट बी स्ट्रक्चरल फर्स्ट, और उसके बाद फिर देखेंगे इसमें काउंसलिंग का भी सेशन। जी ओके शुरू मैडम। करें। ओके okay, I will, after mutual introduction, I will confirm the given detail in the scenario. Then I will take the focus history, that it's 12 weeks gestation age. Then I will ask about its first marriage. Both partner are living together, and हम्म। occupation of her husband. And हम्म। then I will ask about her, is the pregnancy was planned, unplanned, with the हम्म। treatment or with the spontaneous conception, any flu fever rash in the first 3 months of the pregnancy, and हम्म। is she admitted for the any hyperemesis in the gravidarum, or हम्म। and then the dating scan done or not, how the pregnancy was confirmed, and on the single हम्म। live fetus or the twin pregnancy. Then I will ask about her the any history of the vaginal discharge, lower abdominal pain, any burning हम्म। micturition, frequency, dysuria. हम्म। हम्म। I will ask about her the any history of cough, fever, any sputum, any complaint of the sore throat in the last few weeks, हम्म। any history of the blood transfusion, any history of the like tattooing in her arm or legs, any history हम्म। of the needle prick injury, any then I will ask about her the any history of weight loss, loss of appetite, and night sweat. हम्म। Then I will go for the past medical history of the concern, like diabetes, hypertension, past surgical history of the concern, हम्म। and any history of blood transfusion, drug allergy, and drug addiction, and the socio-economic status. हम्म। Then I will go for the examination of um, calculate the BMI, monitor vital, blood pressure, respiratory rate, temperature, pulse, and thyroid examination, and rule out anemia. Then thyroid examination, chest examination, and abdominal examination as routine, as she is the 12 weeks of the pregnancy. हम्म। Then, madam, investigation. हम्म। Okay, after baseline investigation, complete blood count with the recent date and time, HP surface antigen viral marker, and OGTT, and midstream urine. And in specific, I want I want the HIV status, and if it is positive, then I will go for the viral load, and CD4 count, and LFTs, RFTs, and ultrasound pelvis for the ultrasound FWB for the dating scan to confirm the cardiac activity, and either the single pregnancy or the multiple pregnancy. हम्म। Madam, आगे should I go चलें। for the proceed for the management? हाँ, ओके। Management. हम्म। I will offer support to the पहले patient, आप अपना and कंप्लीट कर लें, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? okay, अच्छा। madam. I will offer support to the patient and will tell her that she is having a virus, and which is HIV very empathetically, and I will tell her that
its pros and cons, and I will involve multidisciplinary team in which senior obstetrician, anesthetic, neonatologist, HIV physician, and hematologist. And I will tell her that fetal-maternal risk due to this virus. In maternal, the risk of the opportunities infection, maybe the risk of the cesarean section, preterm delivery. In fetal, there is a risk of the miscarriage, IUGR, and neural tube defect due to the taking the treatment of the antiretroviral therapy and the preterm labor. So my aim of the management is to keep the viral load is less than 50 and the CD count is more than 350. And treatment will depend upon the viral load and the CD4 count. And if the if the viral load is less than 10,000, so I will start the Zidovudine monotherapy. And if the viral load is less than 1 lakh, then I will start for the 3 drug, Zidovudine, Lamivudine, and Abacavir. And if the viral load is more than 1 lakh, then I will start the Zidovudine, Lamivudine, Abacavir, and the Raltegravir. After starting the treatment, I will monitor the viral load and the CD4 count. Viral load at the baseline and at delivery. And the viral load is after commencing the ART, 2 to 3 weekly after the commencing the ART, then each trimester at 36 weeks and at delivery. I will tell her the patient that she should visit frequently, monthly for at least monthly at 28 weeks, and after that weekly till 36 weeks, 2 weekly till 36 weeks. And at each visit I will check the BP, protein, and rule out any infection. And anomaly scan should be done at 20 weeks, and OGTT done should be 24 to 28 weeks, and growth scan to rule out the IUGR. My aim of delivery depend upon the viral load. And at 36 weeks, I will discuss the mode of delivery, time of delivery, analgesia, breastfeeding, contraception. And if the viral load is less than 50, so I will go for the spontaneous vaginal delivery. If the viral load is more than 50, then I will consider the cesarean section. And if there is a spontaneous vaginal delivery, so I will start the Zidovudine monotherapy IV, and I will avoid any invasive procedure. I will avoid the vacuum, and after that I will after delivery I will baby hand over to neonatologist, avoid breastfeeding, tell her about the formula feeding. And after the delivery I will also check the status of the baby at birth, 3 weeks and 6 weeks. And I will also give her the post exposure prophylaxis. And if it is high risk, so I will give the 4 weekly combined antiretroviral therapy. And if it is low risk, so 4 weeks with the Zidovudine monotherapy. Okay, finish. हाँ Yes, जी, madam. आप इसमें कुछ और बताना चाहेंगे? ओके, इसमें हम शुरू करते हैं इनकी हिस्ट्री से। हिस्ट्री में पेशेंट आपका डायग्नोस्ड है HIV पॉजिटिव, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। अब Yes, madam. पेशेंट को आपने काउंसिल करना है, तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आप बकायदा कंसेंट लेके उसको प्रोज एंड कॉन्स बता के, ये प्री टेस्ट काउंसलिंग होती है। उसके बाद जब टेस्ट रिपोर्ट आती है तो दोबारा काउंसिल करती हो, और उसमें हमेशा याद रखिए रिकन्फर्म करना जो होता पेशेंट होता है, जी है, हमेशा रिकन्फर्म करना होता है। और देयर आर एग्जाम्पल्स के जहाँ पे पेशेंट का पॉजिटिव आ गया और बाद में जब कंफर्म किया गया तो वो रिपोर्ट उसकी नहीं थी। देयर आर एग्जाम्पल्स। तो और इसलिए मैडम पेशेंट इसमें को हम आप एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में डाल देते हैं बाय टेलिंग हर दैट यू आर टर्न्ड आउट टू बी HIV पॉजिटिव। तो और हमेशा मैडम इसमें उसको सिर्फ पेशेंट को रिकन्फर्म ही करें। बताना होता है ना, जी इसमें ये नहीं, ब्रेकिंग बैड न्यूज सिर्फ पेशेंट को ही करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे आप किसी को बुलाना चाहती है तो उसको भी बुला लें, और इसमें सिर्फ पेशेंट को नहीं, ही वही मैं कह बताएंगे रही आप। हूँ ना कि ये आपने जी बोलना है, जी बोलना है पेशेंट की ये सारी चीज एवेल्युएशन शुरू करने से पहले। मेक इट श्योर कि ये टेस्ट उसी का है। अब अगर फर्ज यस किया मैडम। ये टेस्ट आप उसका पॉजिटिव आ गया, देन बेसिकली इट विल बी लाइक ब्रेकिंग अ बैड न्यूज। यस तो मैडम। उससे पहले आप उसको रिकन्फर्म हमेशा करते हो,
ठीक है, इसमें ये और उसके बाद आपने ये भी तो देखना है कि आखिर उसका ये टेस्ट क्यों हुआ। क्या किसी प्रोसीजर के लिए एस प्री ऑपरेटिव या प्री एनेस्थीसिया जो एक स्क्रीनिंग होती है उसके पर्पस के लिए हुआ, या उसको कोई सिम्टम्स थे तो हुआ, या उसका पार्टनर इज पॉजिटिव तो हुआ। तो ये उसमें जो इंडिकेशन है आखिर वो टेस्ट ये रूटीन की स्क्रीनिंग में तो अब हमने शामिल कर लिया, लेकिन अगेन दिस इज विद द कंसेंट कि ये हम टेस्ट आपका करवा रहे हैं और ये क्यों जरूरी है ये बताना जरूरी होता है। तो ये वाली चीज कि इसमें एक रूटीन की स्क्रीनिंग थी या किसी वजह से था, और अगर इसका पॉजिटिव आ गया तो फिर उसमें बाकी जो इसके मतलब कॉन्टेक्ट्स में है वो सारे उनको स्क्रीन करना जरूरी तो हो जाता आपने स्क्रीन करना है जी। है। एंड वंस यू नो कि पेशेंट पॉजिटिव आ गया तो उसके बाद फिर आपने उसमें उसकी वजह देखने के लिए कि आखिर ये क्यों हुआ। जो सबसे कॉमन रीजन है वो तो हस्बैंड का ही, बिकॉज शी हस्बैंड। हैज सम हाई रिस्क हिस्ट्री के द हस्बैंड इज लिविंग इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज। लेकिन मिडिल ईस्ट का तो हमने एक बनाया हुआ है, एनी एनी मतलब एनी टाइम आउट ऑफ कंट्री जब कोई रह रहे होते हैं तो उसमें ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। या अच्छा। पेशेंट को कोई रिकरेंट वेजाइनल डिस्चार्ज है विच इज नॉट डिस्चार्ज। ट्रीटेबल बाय द रूटीन मेडिकेशन, या पेशेंट को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब समथिंग लाइक जो एक रिड्यूस्ड इम्यून सिस्टम के रिजल्ट्स होते हैं उसके फोर्थ काइंड फीवर सिम्टम्स। इन्फेक्शन, यस मैडम। हाँ, तो ये सारी चीजें कि उसमें और दूसरी बात ये कि इसमें जो कॉमन सोर्स हैं अदर देन द सेक्सुअल कांटेक्ट भी जो है हमें इसमें जानने जरूरी होती हैं। बाज दफा सेक्सुअल कांटेक्ट से ये नहीं होता और उसमें दूसरी वजह हो सकती हैं जो आपने बता ब्लड भी दिया कि ट्रांसफ्यूजन, नीडल नीडल प्रिक प्रिक है इंजेक्शन, या ब्लड और या ट्रांसफ्यूजन है, कोई ये सारी चीजें। टैटूइंग है, या ये जो तो टैटूइंग करवाती बेसिकली हैं। बेसिकली इसमें हाई रिस्क बिहेवियर्स ये बहुत जरूरी होते हैं। व्हाट इज हर जनरल न्यूट्रिशनल स्टेटस, मे बी शी इज पॉजिटिव मतलब since her marriage because she is primary gravida, we don't know for how long she is married and for how long she has lived with her husband because her husband is out of country। तो इसमें जो है वो ये सारी चीजें जानना बड़ा जरूरी होता है। ये वो बेसलाइन इंफॉर्मेशन है जिसपे आप सारी चीजें आगे बेस करोगे, उसकी मैनेजमेंट भी उसकी काउंसलिंग भी ये सारी चीजें बेस करनी होती है। मे बी शी हरसेल्फ इज ओनली पॉजिटिव और उसमें जो है वो उसका हस्बैंड हो सकता है नेगेटिव भी हो। ये जो डिस्कॉर्डेंट कपल्स आ जाते हैं उसमें उसकी सिचुएशन फर्क हो जाएगी। उसमें जो पोस्ट एक्सपोजर प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस है वहां वो वाली चीजें इसमें आ जाएंगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने लेनी है। तो यस पेशेंट का मैडम, जरूरी टेस्ट होता कब हुआ है। जी? मैडम जरूरी नहीं अगर हस्बैंड दुबई में रहता है तो उनका ही हाँ, मैं उससे वही हो, तो कह रही क्या हूँ ना पता कि ये मिडिल ईस्ट पेशेंट का ही। तो हमने हमने नाम जी जी बदनाम किया हुआ है ना वैसे ही, लेकिन ये एक हाई रिस्क बिहेवियर है बिकॉज जी, व्हेन द ये पेशेंट पेशेंट को इज भी हो लिविंग सकती है। देयर द जी व्हेन द हस्बैंड इज लिविंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम और उसका जो है वो अपना कंट्री विजिट कम से कम हो तो डेफिनेटली दैट पर्सन माइट बी इन्वॉल्व इन सम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स। दैट इज वाई के उसमें हम उसको थोड़ा सा हाई रिस्क भी, बट एनी वेयर एल्स कहीं पे भी रह रहा हो तो उसमें ये हाई रिस्क बिहेवियर्स में आ जाता है। और जी डेफिनेटली फिर उसमें पार्टनर की हिस्ट्री ये सब चीजें बड़ी जरूरी हो जाती हैं। तो HIV टेस्टिंग इसके टेस्ट पॉजिटिव आने पे ही आपके बहुत सारे सवाल हैं जो आपने उससे पूछने होंगे जो जी आपने नहीं पूछे। तो ये सारी चीजें आप उसे, और उसका टेस्ट उसने कब करवाया, ये सब चीजें आपने पूछनी है कि ये अभी हुआ और क्यों हुआ और इसमें क्या सिम्टम्स थे। और इसके अलावा उसका जो हस्बैंड है अगर फर्ज किया वो HIV पॉजिटिव और वायरल लोड पे भी तो हमें पता चलेगा कि वो ट्रांसमिशन वाले जो केस में ट्रांसमिशन है। वाला एक जी उसका फेज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो फिर उसके बाद सारे फैमिली मेंबर्स की स्क्रीनिंग, ठीक है। तो स्क्रीनिंग। ये सारी चीजें हैं जो इसमें करनी पड़ेंगी। एंड वंस द पेशेंट हैज बीन डायग्नोज्ड एज HIV पॉजिटिव तो ये वो चीज है जो नोटिफिकेशन वाले उसमें आ जाती है, कैटेगरी में आ जाती है, बिकॉज देयर इज कम्युनिटी जी हेल्थ रिस्क ड्यू टू इट। तो वहां पे जो है वो आपने फिर नोटिफाई करना होता है टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। जी तो ये नोटिफिकेशन वाली चीजें हैं। अब ये आपकी बाद में डिस्कशन में ये चीजें आएंगी, लेकिन हिस्ट्री में आपने, और दूसरी चीज ये कि पेशेंट से ये भी पूछो कि डज एनी वन एल्स ऑफ द फैमिली मेंबर नोज दिस थिंग, कि किसी और को पता है या नहीं पता।
क्योंकि ना पता होना जो है वो उसमें भी एक हाई रिस्क बिहेवियर आ जाता है कि हाई पेशेंट रिस्क उस बिहेवियर तरह आ गया से तो आप not- मतलब उस तरह से जो उसका एक लाइफ स्टाइल है वो उसमें चेंजेस नहीं ला सकती। और उसमें अगर वो करेगी तो दैट और अगर वो फर्ज किया डिस्क्लोज कर देती है द फीमेल पेशेंट स्पेशली, तो वहां पे फिर एक सोशल स्टिग्मास वाला फैक्टर डू एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, इन आवर सोसाइटी। तो वहां पे फिर एक पीयर सपोर्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये सोशल स्टिग्मा वाली चीजें, और अगर उसने ये सारी चीजें हैं जो इसमें बताना जरूरी होगा। अब इसमें ये सारा कुछ हो गया। आपने इसके बाद फिर एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने रूल आउट करनी होती हैं, और Return इसमें discharge local हाँ मतलब local इसमें court पे एसटीडीज, पहुंच क्योंकि हम जी जी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की बात करते हैं कि वो ज़ाहिर है इम्यूनोसप्रेशन की वजह से ऑलरेडी, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द जी CD4 काउंट। तो उसमें जो है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इवन विद द HIV पॉजिटिव। तो डिपेंड करता है वायरल लोड पे, CD4 पे, ये सब चीज़ें। तो और दूसरी बात है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन है या भी रिसेंट इन्फेक्शन है, एंड द को इन्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है hepatitis B HBV एंड C and HCV। vaccination तो pneumococcal ये मैंने ये मिस किया सारी ठीक है चीजें आपने टेस्टों में भी बोलनी है जो आपने नहीं जी बोली। ठीक है, ये सब जी चीजें, और STD स्क्रीनिंग भी इसमें करनी होती है। एंड बिफोर यू स्टार्ट विद द ART, यू हैव टू स्क्रीन फॉर द बेस लाइन RFTs एंड LFTs। उसके बाद हम ज्यादा ड्रग मॉनिटरिंग, उसकी टॉक्सिसिटी को मॉनिटरिंग मॉनिटर ड्रग करने के लिए टॉक्सिसिटी तो को करते ही मॉनिटर करते हैं। करेंगे सो जी मैडम अगेन दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर बेस लाइन टेस्टिंग। तो एग्जामिनेशन में हमने STD के लिए उसको सारा वो किया, और उसके अलावा उसको जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है वो सारा, और उसको कोई अगर इन्फेक्शन के सिम्टम साइंस हैं तो वो हम देख लेते हैं। अदरवाइज बहुत ज्यादा इसमें कोई एक्सक्लूसिव वो फाइंडिंग्स नहीं है जो विच इज वेरी स्पेसिफिक फॉर द HIV पॉजिटिव। अब जो पेशेंट की काउंसलिंग है, अब यू हैव टू ब्रेक द बैड न्यूज बिकॉज अब बाज दफा ऐसा होता है कि पेशेंट नोज इट ऑलरेडी। अब पेशेंट जो है वो इसमें उसको पहले से पता होता है, या कम से कम उसको टेस्ट करने या लैब वालों से भी पता चल जाता है, पढ़ी लिखी पेशेंट है तो वो वैसे भी रिपोर्ट देख लेगी। तो उसमें अब पेशेंट की काउंसलिंग पे ये डिपेंड करता है कि हाउ यू हैव टू ब्रेक द बैड न्यूज। उसमें वो सारे क्राइटेरियाज अप्लाई होंगे जो हम ब्रेकिंग बैड न्यूज पे करते हैं। और उसके उसके अलावा जो है वो अब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। बट इन फॉर सम इन्फेक्शंस लाइक दिस वन, आप इसमें इसको कॉन्फिडेंट नहीं रख सकते बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एज वेल एंड अफेक्टिंग द अदर पीपल इन द फैमिली एंड इन द सराउंडिंग्स। तो इसलिए इसको इस पेशेंट को सारे वो बताने होते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इसमें ट्रीटमेंट कितनी ज़रूरी होती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब के सब हमने ये देखना होता है। तो इसलिए जो है वो इसमें काउंसलिंग एक बड़ा सेंसिटिव इसमें वो चीज़ होगा, क्योंकि मैडम इसमें जब आप टेस्टिंग करते हैं तो प्री टेस्ट काउंसलिंग है। इसमें ये स्टेज बाईपास हो चुकी जिसमें HIV पॉजिटिव आ गया। फिर उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं तो आपकी पोस्ट टेस्टिंग काउंसलिंग है जो आपने अब इसमें कवर करनी है। पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या मजीद स्टेप्स अब लेने जरूरी होंगे, हाउ टू नोटिफाई, हाउ टू स्क्रीन द अदर फैमिली members, knowing the status of the husband as well and the other family members if she knows it already, and might be she is a chronic carrier of this virus। और उसके अलावा ये इसका एक इसने डिस्क्लोज अप किया हो या किसी मजबूरी के नतीजे में इसको कराना पड़ा हो और अब ये डिस्क्लोज हो गया, तो उस सूरत में उसकी जो एक ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन है वो बढ़ जाएगी। तो ये सारा कुछ आपने फिर उसके काउंसलिंग में फिर आप करोगे, एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इन द प्रेगनेंसी, हाउ द प्रेगनेंसी कैन अफेक्ट द कोर्स ऑफ द डिजीज, एंड हाउ द डिजीज विल अफेक्ट द डेवलपिंग फीटस एंड द मदर एज वेल। मदर पे भी उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, and what should be the and what is the probable plan of management, meaning कि इसमें इसकी रूटीन स्क्रीनिंग भी जरूरी होगी, मॉनिटरिंग रादर। और इसके अलावा इसमें जो हमने ART स्टार्ट करनी है वो दैट विल डिपेंड अपॉन द मैनी बेसलाइन फैक्टर्स। वायरल लोड है। एक और चीज जो आपने इन्वेस्टिगेशन में नहीं बताई, दैट इज नोइंग द जीनोटाइप ऑफ HIV।
उसके वायरस का जो जीनोटाइप होता है हम वो भी करवाते हैं। और K1 है इसके या अलावा 2 है? जो जीनोटाइप में HIV 1 है और 2 है, 1 और 2, 1 yes, इज मोर विरुलेंट एज more कंपेयर rare, टू HIV 2। 2, और yes. इनकी हमेशा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लाइक अगर हम हेपेटाइटिस सी वायरस की बात करें तो उसमें एशियन कंट्रीज के कुछ अपने जीनोटाइप्स हैं, तो उसमें उसकी विरुलेंस पे एंड द रिस्पॉन्स टू द ड्रग्स जो कॉमनली यूज ड्रग्स हैं वो उस पे जीनोटाइप पे बेस करता है। तो इसलिए वो भी करवा लेना हमेशा बेहतर होता है। दूसरी चीज ये कि रिस्क ऑफ द ट्रांसमिशन टू द फीटस इज ऑलमोस्ट 4-5 फोल्ड्स मोर इन HIV 1 एज कंपेयर टू HIV 2। तो इसमें सिंपल ट्रीटमेंट के साथ हम HIV 2 में कर सकते हैं, जबकि उसमें हमें मल्टी ड्रग रिजीम चाहिए होती है HIV 1 में, और ज्यादा कॉमन है भी HIV 1 ही, तकरीबन इन 90% ऑफ द केसेस। तो वो भी आप करवाते हैं। और जो एक चीज इन्वेस्टिगेशन में हमने बाईपास कर दी, जो हमने STD का तो किया, बट STD की टेस्टिंग भी हमने करवानी होती है। जैसे HSV आप करते हो, क्लेमिडिया करते हो, ये सारी चीजें हैं जो HSV की टेस्टिंग में आ जाती हैं, तो ये भी आपकी इन्वेस्टिगेशन में ही शामिल होगा। और HPV और HCV की तो हमने बात कर ली। तो ये सारी चीजों के साथ आप पेशेंट की काउंसलिंग करोगे, एंड यू विल ऑल्सो आस्क फॉर इट। जब आप हिस्ट्री ले रहे होगे कि HIV का ये क्या उसको पहले कभी उसने ये करवाया और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट पहले कभी ली, जो मैं बात कर रही थी कि हो सकता है प्री मैरिज इसका ऐसा हो, या वो ऑलरेडी नॉन पेशेंट हो और उसने ट्रीटमेंट ली हो, एंड नाउ ड्यू टू सम रीजन शी हैज टू अंडरगो दिस टेस्टिंग, जिस पे वो पॉजिटिव आ गया, तो ये जो है वो इसमें हम उसको भी शामिल करेंगे। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में जो बहुत सारी चीजें हैं, इसमें जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने बताया वो दैट वाज ओके, कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो मेन है वो है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को कम करना, और वो चीज बेस करेगी ऑन द वायरल लोड। और CD4 काउंट तो फिर इनडायरेक्टली उसके साथ लिंक्ड ही होता है। तो वायरल लोड जितना कम होगा उतना ही मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन रिस्क कम हो जाएगा। तो उस वायरल लोड को कम करने के लिए हम इसको शुरू कर देंगे ART। अब when to start with the ART? Right now when she is at 12 weeks of gestation or sometimes afterward? It depends Is upon the ना? viral load. Hmm? Madam, it depends upon the viral load. Okay, what is the lowest normal limit of viral load? Um, नॉर्मल तो नहीं हम कह सकते, मतलब लोएस्ट लिमिट जो सेफ, मतलब जो लो रिस्क समझी जाती है। मैडम अगर 10,000 से कम है तो फिर हम वो कहते हैं कि 10,000। मतलब अगर 30,000 से कम है तो हम लोग स्टार्ट ऑफ मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करते हैं ना। अगर 30,000 से 1 लाख है तो फिर हम स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट कर लेंगे। ये देखो, अब इस वक्त ये हम इस पेशेंट की बात कर रहे हैं जो हमारे पास ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सपोज इसका वायरल लोड आ जाता है लेस देन 50, हम कॉपीज के हिसाब से बात करते हैं ना, इसमें कॉपीज होती हैं, उनके क्लस्टर्स होते हैं वायरस के। तो इसमें जो 12 वीक्स वाली चीज है, इसमें फर्ज किया वायरल लोड, इसको हम कहते हैं कि दिस इज ऑलमोस्ट 100 कॉपीज। सही। तो फिर क्या करेंगे? अगर मोर देन 100 क्या कॉपीज हम, हैं क्या कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें हमें राइट नाउ अभी के अभी हमें शुरू करने की जरूरत पड़े? मैडम, इसमें तो हम अभी नहीं स्टार्ट कर सकते ना। बिल्कुल नहीं कर सकते क्या? अगर इसका वायरल लोड इज मोर देन 100,000 कॉपीज, यू हैव टू स्टार्ट इट राइट नाउ, even if the patient has come to us at 6 to 8 weeks of gestation, वो तो बिल्कुल मिड ऑफ, समझो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अर्ली टाइम पीरियड ही होता है। इवन देन बिकॉज द वायरल लोड इज क्वाइट हाई, और जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन रिस्क होता है वो जैसे जैसे ट्राइमेस्टर वाइज आगे जाती है प्रेगनेंसी, वो बढ़ता जाता है, उसके चांसेस बढ़ते जाते हैं।
लेकिन इसमें जितना ज्यादा लंबी थेरेपी हमने उसमें एंड ऑफ सेकंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर हम जितना ज्यादा उससे पहले दे चुके होंगे, उतना ही रिस्क ऑफ जो फीटल ट्रांसमिशन है वो कम हो जाएगा। Yes. So, in view of the increased high risk viral load जो कि 100,000 से ज्यादा है, तो हमने उसको हर हाल में थेरेपी अभी राइट नाउ शुरू करनी है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और अगर फर्ज किया ये 100,000 से कम हो, तो उस सूरत में हम इसको फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में शुरू करते हैं, जिसमें मैक्सिमम 24 वीक से पहले पहले 24 वीक से पहले पहले हमने हर हाल में शुरू कर ही देना है, ताकि जब तक ये थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंचे, जबकि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा होती है, तो उस वक्त से पहले इसको एक 10 वीक्स की थेरेपी मिल चुकी हो। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इसको वायरल लोड पे डिपेंड करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम नहीं दे सकते, अलबत्ता फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारी जो सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स है वो फर्क हो जाएगी। तो उसमें हम जो जिनमें टेरेटोजेनिसिटी होती है, जैसे प्रोटीज इनहिबिटर्स हैं, वो हम नहीं देते, यानी जिससे टेरेटोजेनिसिटी के बढ़ने के चांसेस होते हैं। बट वी हैव टू स्टार्ट द सेफ मेडिसिन। ठीक है, अब जैसे जो NRTIs हैं, उसमें ज्यादातर जो लेमिवियोडीन है या जाइडोविडीन है, AZT है, ये दीज आर कंसिडर्ड टू बी सेफ ड्रग्स। और कभी कभी अगर ये कोई इन्फेक्शन है या मतलब इसमें CD4 काउंट जो है वो कम हो जाए, और CD4 काउंट हम कब कहेंगे, ये है जो 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर्स। तो ये CD4 काउंट, इसका मतलब है कि एग्रेसिवनेस ऑफ द इन्फेक्शन इज मोर बिकॉज इट हैज कॉज्ड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन। तो वायरल लोड ज्यादा, CD4 काउंट कम, आपने स्टार्ट कर देनी है थेरेपी विद द सेफ ड्रग्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो अब इसमें जो है कि इसमें हम ये वाली थेरेपी जो सेफ थेरेपी है वो करेंगे। इसमें हम व्हेन वंस द पेशेंट एंटर्स इनटू द सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो इसमें हम कुछ जो है वो दूसरी ड्रग्स भी मिला देते हैं, लेकिन ये हम ध्यान रखते हैं कि इसमें जो ड्रग्स हम कंबाइन करें, कम से कम उनका प्लेसेंटल ट्रांसफर हो, बिकॉज वट एवर द वायरस गोज इन टू द फीटल सर्कुलेशन, वहां पे उसको वहीं पे उसका एक एंटीडोट हमने ऑलरेडी इज इन द फीटल सर्कुलेशन, यानी वो ड्रग भी जा रही है उसके साथ साथ। अगर वो वायरस जा रहा है तो उसके साथ साथ ड्रग भी जाएगी। तो इसलिए उसकी उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम ऐसे थर्ड एजेंट शामिल करते हैं। जी, सबको आ रही है मेरी क्लास? Yes, जी मैम ma'am. जी अच्छा, मैम आ रही हूँ। बीच में हाँ जरा जी मैडम आ रही है आवाज। गया था। अच्छा, अब हम थे कि हमने उसको ART शुरू कर दिया। नाउ वी हैव टू मॉनिटर द पेशेंट। मैम तो रजीम बतानी है? जी जी बताइए। नहीं मैम बताएंगे हम रजीम सिनेरियो में। मतलब रिजीम बता सकते हैं, जो एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, और जो कॉमन चीजें हैं जैसे जाइडोविडीन का तो हमें हमेशा से पता है कि ये दी जाती है, लेकिन अब टेनोवोफेड जो है वो भी दी जाती है, क्योंकि ये एक सेफ रिजीम है इवन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और इसके अलावा एसजेटी बेसिकली जो NRTS जो NRTS हैं प्रेपरेशंस हैं, दीज आर कंसिडर्ड टू बी सेफ इन प्रेगनेंसी। तो उसी की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्रग्स हैं जो कि फिर हम इसमें वो करते हैं। रेल्टिग्रेवर इज अ डिफरेंट मेडिसिन, और अमूमन ये प्लेसेंटल ट्रांसफर्स के लिए ज़्यादा बेहतर समझी जाती है, बट एज कम्पेयर टू लोअरिंग द वायरल लोड, AZT और यूजाइडोविडीन है, लेमिविडीन है, टिनोवोफेरन, दीज आर ऑल कॉमन ड्रग्स टू बी यूज्ड। ज़्यादा कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं ये वो ड्रग्स हैं, कम से कम उन 3-4 के तो नाम पता होना चाहिए।
वरना तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हम शायद प्रोनाउंसिएशन भी हमें नहीं सही आती, तो कम से कम ये जो कॉमन ड्रग्स हैं उनका पता हो। तो अब हमने इसकी शुरू कर दी, ठीक है। एंड एज द वायरल लोड इज मोर, सो वी विल स्टार्ट विद मिनिमम 3 ड्रग रिजीम्स एट लीस्ट इंक्लूडिंग टेनोवोफर इन दैट, ठीक है। उसमें लेमिविडीन के साथ हम दूसरी एक कंबाइन कर सकते हैं, जाइडोविडीन इज कंसिडर्ड, यूजुअली इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेसिक ड्रग्स। और इसमें जो है ये अब हमने इसको शुरू कर दी। अब इसके साथ जो है वो अब हमने इसको मॉनिटर करना है, क्योंकि आपने तो ड्रग शुरू कर दी, अब इसमें हमने देखना है इसका इफेक्ट कितना है। हाउ यू विल मॉनिटर? मैडम वायरल लोड से हम मॉनिटर करेंगे और CD4 काउंट से हम फ्रीक्वेंटली वो तो हमने उन्हीं के 2 के साथ करना है, लेकिन देखो एक हमने उसकी एफिकेसी ब्लड मॉनिटर काउंट करनी है, एक करेंगे, हमने उसकी टॉक्सिसिटी मेजर करनी है। CBC रीनल एफिकेसी एंड फंक्शन टेस्ट, टॉक्सिसिटी लीवर हैज टू बी फंक्शन टेस्ट, सीन। हम्म yes, CBC रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। वो तो करेंगे उसके साथ ही। कितना फ्रीक्वेंटली करेंगे? मैडम 2 वीकली करते हैं हम फर्स्ट वो। तो हम 2 वीक्स के बाद करेंगे और उसके हाँ। बाद हम उसके मंथली बाद करते रहेंगे। हर ट्राइमेस्टर में करेंगे, हाँ हर ट्राइमेस्टर में करते हैं और एक 36 बेसिकली वीक्स में बेसिकली चूंकि जी वायरल लोड बहुत ज्यादा है, ये डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी कि वायरल लोड इनिशियली बेसलाइन कितना था और कितना था। CD4 जी मैम। काउंट कितना था। फ्रीक्वेंसी उस पे बेस करती है, और ये चूंकि एक हाई रिस्क उसमें लेवल्स में आ जाता है, इस वजह से इसकी जी 2 वीकली इनिशियली, एंड देन जी अकॉर्डिंग टू द डिक्रीज इन द वायरल लोड फिर हम आगे फ्रीक्वेंसी उसकी डिटरमिन करते हैं, because there should be an appreciable decrease in the viral load after starting this combination therapy. और अगर वो नहीं होता तो then you have to monitor it more frequently, but generally speaking initial monitoring is after 2 weeks and then monthly, क्योंकि वायरल लोड ज्यादा है। फिर हम उसमें हर ट्राइमेस्टर वाली बात नहीं करेंगे, हर ट्राइमेस्टर वाली बात हम उस वक्त करेंगे जब वायरल लोड इनिशियल बेसलाइन वायरल लोड कम होगा। तो इसमें सपोज अब 2 चीजें हैं कि वायरल लोड ग्रेजुअली इसका कम हो रहा है एज पर आवर परसेप्शंस और एक्सपेक्टेशन, तो इट्स ओके टू कंटिन्यू विद द सेम ड्रग रिजीम। लेकिन अगर फर्ज किया वी डोंट गेट द रिजल्ट्स, द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो फिर हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? फिर हम डॉक्टर मैडम 4 ड्रग पे आ जाते हैं। इसके साथ ऐड कर उससे देंगे पहले आप क्या लेल्टिगैब। रूल आउट करोगे? उससे पहले आप क्या रूल आउट करोगे? 4 ड्रग रिजीम पे जाने से पहले आप क्या चीजें रूल आउट करोगे? That why the drug is not effective. मैडम वो मतलब उसकी उसकी एफिकेसी वो टाइम पर ले भी रही है, नहीं ले रही, या कुछ इस तरह। मैं Compliance उसकी, adherence to the drug, ठीक है। जी और रेजिस्टेंट। रजिस्टेंस टेस्ट भी करेंगे मैडम। हाँ, ड्रग रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, या हो सकता है बीच में उसको नौजिया वॉमिटिंग डायरिया भी रहा हो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ड्रग, और उसकी वजह से ड्रग की एफिकेसी वो ना हो। और once the result has to be is declared to the family, तो social support जो है यूजुअली जो बेसिकली जो साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो सोशल स्टिग्मा, सोशल सपोर्ट हैं, ये सब चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। दिस इज अ जनरल एटीट्यूड, ठीक है। ये सिर्फ हमारी अपनी ही कंट्री की बात नहीं है, जनरली अदरवाइज भी। तो वो भी हमें सारी चीजें जो हैं वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट, वी हैव टू रिव्यू ऑल दीज थिंग्स कि इसमें वजह क्या है। अगर इनमें से कोई भी ऐसी वजह है जो कि उसकी ड्रग की एफिकेसी के कम होने की वजह बन सकती हो, तो सबसे पहले तो हम उसको करेक्ट करेंगे रादर देन स्विचिंग ऑन टू द 4 ड्रग रिजीम्स, क्योंकि जितनी ज्यादा आप ड्रग कंबाइन करते हो उतनी ज्यादा फिर उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट उसको छोड़ देता है। तो ये सारी चीजें आप इसको वो करोगे। तो ये सारा कुछ देखने के बाद देन यू कैन स्विच ऑन टू द 4 ड्रग रिजीम्स, और उसके बाद फिर उसको उसके हिसाब से मॉनिटरिंग है। अब अच्छा इसमें मैडम। ये इसको ये सारी मैनेजमेंट ये चलती रहती है। अब इसमें डिफरेंट सिनेरियोज फिर और तरह के जो आ जाते हैं, उसमें ये कि मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगी। इसमें जो आपसे क्वेश्चन एक स्ट्रक्चर्ड वाइवा में जो पूछे जा सकते हैं वो डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। एक तो मोड ऑफ डिलीवरी, हाउ यू विल डिसाइड, क्या ये पेशेंट नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी हम इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
मैडम अगर उस पे डिलीवरी पे अगर वायरल लोड लेस देन 50 है तो फिर हम उसको नॉर्मल चैनल डिलीवरी के लिए जाएंगे। अगर उसका या तो उसका वायरल लोड मोर देन 50 हो, या तो पेशेंट एआरटी ना ले रही हो, या वायरल लोड अननोन स्टेटस हो ना, और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मतलब 4 आवर से ज्यादा हो गई है, देन वी विल गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन नहीं, एट उसमें जो 38। एक सिंगल फैक्टर होगा ना जिसपे आप मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करोगे, वो है वायरल लोड। वायरल लोड पे ये जी जो सब मैडम। चीजें हैं, रप्चर मेम्ब्रेन है, लेबर शुरू हो गई, वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी वायरल लोड पे। तो वायरल लोड अगर मोर देन 50 कॉपीज हैं तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन। और उसमें सेक्शन उसकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी डिपेंड करेगी कि उसमें रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है या नहीं है, लेबर शुरू हो गई है या नहीं हो गई। तो उसके ऊपर उसकी अर्जेंसी डिपेंड करेगी। इवन समटाइम्स इफ द पेशेंट इज हैज कम इन द लेबर एंड विद द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड द वायरल लोड मोर, तो ऐसी सूरत में आपका कैटेगरी 2 सेक्शंस हो जाएगा। फिर आपने वो 4 घंटे या 24 घंटे वाली बात भी नहीं करनी, वो फिर कैटेगरी 2 सेक्शंस हो जाएगा। तो एक्सेप्ट फॉर द वायरल लोड लेस देन 50, ऑल अदर सिचुएशंस हैव टू बी, ऑल अदर पेशेंट्स हैव टू बी डिलीवर्ड बाय इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शंस। और यूजुअली प्री लेबर ये सेक्शन होना चाहिए। अब इसमें जो एक डिफरेंट सिचुएशन जो आ जाती हैं वो ये कि पेशेंट प्री टर्म लेबर में चला जाए, उसको प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए, तो उसमें क्या हमें करना चाहिए। तो हाउ दिस विल डिफर। सपोज अ पेशेंट कम्स इस गोज इनटू लेबर एट 30 वीक्स। ये वाली पेशेंट जो है ये 30 वीक्स पे 30 वीक्स पे इसको लेबर स्टार्ट हो जाती है, देन व्हाट। मैडम मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, सिरोम हुआ है नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं। प्री टर्म लेबर उसको शुरू हो गई, तो अब हम इसमें क्या करेंगे। और पेशेंट है 30 या 31 वीक पे समझ लो, तो फिर हम उसको मैडम उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। मैडम इस पे भी डिपेंड करेगा वायरल लोड पे ना। वायरल लोड पे और डिपेंड करेगा, बट व्हाट वी कैन गिव। अब इसमें देखो, इसमें अब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मैडम पे डिपेंड करेगा कि अर्जेंसी सिचुएशन कितनी है। मैडम तो इसकी रप्चर ऑफ एक्सपेडाइट मेम्ब्रेन इस के पे मैं साथ तो देखती वो, हूँ, हाँ, इस पे मैं एग्जामिन अदरवाइज, करूंगी, एक्सपेडाइट करूंगी हम्म डिलीवरी आफ्टर स्टीरॉयड कवर एंटीबायोटिक, हम्म ताकि हम्म रिस्क ऑफ द ट्रांसमिशन मैं कम कर सकूं, बजाय इसके मैं सिजेरियन पे लेकर जाऊंगी इसको। हम्म और इसमें आप मैग्नीशियम सल्फेट भी दे सकते हो, जी इसमें जी टोकोलिसिस भी कर सकते हो, इसमें कर स्टीरॉयड भी सकते दे हैं, सकते हो। स्टीरॉयड और इसमें एंटीबायोटिक सब कुछ। इसमें बेसिकली जो ग्रुप बी इटोविलिन स्ट्रेप्टोकोकस मोनोथेरेपी भी दे एनालिसिस है वो भी करना होता है। पॉजिटिव हो तो आप इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स देते, बिकॉज द पेशेंट इज इन प्री टर्म लेबर। ठीक है और मैडम। लेकिन उसमें जो जीबीएस प्रोफाइलैक्सिस वाली जो बात है, वो बेसिकली जो अदरवाइज अदर देन एचआईवी पॉजिटिव केसेस भी, उसमें हम तब एंटीबायोटिक्स आईवी शुरू करते हैं व्हेन द पेशेंट इज इन ट्रू प्री टर्म लेबर। तो अगर फर्ज किया लेबर अरेस्ट हो जाती है, तो फिर उसमें जीबीएस प्रोफाइलैक्सिस देने की एज सच जरूरत नहीं होती, बट द कंडीशन मे बी लिटिल बिट डिफरेंट इन द पेशेंट्स विद एचआईवी। क्योंकि एचआईवी में इन व्यू ऑफ द इम्यूनोसप्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेंट, तो उसमें चांसेस हैं कि ये इसमें ये मतलब दोबारा से भी होने के चांसेस हैं और उसके फ्लेयर अप होने के भी चांसेस हैं। So we can treat GBS prophylaxis in the patient with preterm labor if she turns out to be positive for GBS। और फिर उसके बाद उसको और हमें जब भी हम GBS के लिए ट्रीटमेंट करते हैं तो आईवी प्रोफाइलैक्सिस हमें जरूरत होती है एंटीबायोटिक्स की। इट कैन बी सेफेलोस्पोरिन्स, और इसको इस कंसंट्रेशन में देना होता है कि उसमें एमनियोटिक फ्लूइड में उसकी कंसंट्रेशन डेवलप हो जाए। That is the way we can prevent the fetus being affected from the group B streptococcus infection, which is the commonest cause of early neonatal sepsis and thus the perinatal mortality। और प्री टर्म में तो इसके चांसेस और भी ज्यादा होते हैं। तो इसमें जो है वो बेसिकली वायरल लोड ज्यादा है, रप्चर मेम्ब्रेन है या नहीं है, उस पर अर्जेंसी सिचुएशन डिपेंड करेगी। और अगर वायरल लोड ज्यादा नहीं है, पेशेंट इज ऑन इफेक्टिव ART, तो ऐसी सूरत में हम इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रख सकते हैं इन द पेशेंट्स जो कि इवन प्रॉम के साथ भी हों और वायरल लोड जिनका कम हो। तो इसलिए इसमें हमें वायरल लोड, इफेक्टिविटी ऑफ द ART और CD4 काउंट,
ये सारी जो चीजें हैं ये उस पर डिपेंड करेगा कि अर्जेंसी ऑफ सिचुएशन क्या है और मोड ऑफ डिलीवरी क्या है। अगर उसमें वायरल लोड, फर्ज किया हमें उसको डिलीवर करना पड़ता है वेदर टर्म और प्री टर्म, लेकिन अगर वायरल लोड उसका 50 से नीचे होगा तो फिर हम उसमें इंडक्शन ऑफ लेबर ट्राई कर सकते हैं, ऑगमेंटेशन भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पेशेंट को फिर जो है वो इसमें डिलीवरी विद इन 24 आवर्स ओज हो जानी चाहिए विद द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, लेकिन मोड ऑफ डिलीवरी विल डिपेंड अपॉन द वायरल लोड। ठीक है, डॉक्टर एक सवाल उसमें है। जी डॉक्टर वो कहते हैं ना, अगर वायरल लोड अननोन हो, मतलब अननोन है, तो फिर हम अननोन वो को फिर स्टार्ट आप हाई करते हैं। रिस्क के तौर पे ट्रीट करते हैं, अननोन को फिर डॉक्टर आप अननोन का लो क्या वायरल मतलब? लोड के तौर पे नहीं करते, हाई रिस्क के तौर पे करते हैं। डॉक्टर अननोन मतलब क्या? जैसे अगर पेशेंट आती है हमारे पास लेबर में, हमें उसका स्टेटस तो हम्म पता नहीं होता, हम हर किसी में तो हम्म एचआईवी नहीं कराते ना। लेकिन उसके हाई रिस्क एटीट्यूड्स होते हैं। मतलब उसको आप यानी हिस्ट्री लेंगे। हाँ, मतलब ये देखो, एक है कि एचआईवी स्टेटस अननोन, एक है वायरल लोड अननोन। वायरल जी लोड अननोन जो है वो डेफिनेटली वो हाई रिस्क में जाता है, हम उसमें एज्यूम नहीं कर सकते कि ये लो रिस्क होगा, बिकॉज द थिंग्स कैन चेंज अब्रप्टली। वो उसमें बहुत ज्यादा जो फीटल नियोनेटल ट्रांसमिशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो वी ट्रीट द पेशेंट ऑन द लाइंस ऑफ हाई रिस्क वायरल लोड की लाइन तो पे हम उसमें उसको हम, ट्रीट करेंगे। अब अगर तो एच उसमें आई वी मतलब स्टेटस, एचआईवी हाँ जी जी, नोन होगा तो मैडम उसमें फिर एचआईवी स्टेटस तो नोन होगा ना आपका? नॉन होगा, बिल्कुल नॉन होगा, तभी तो हम वायरल लोड की बात कर रहे हैं। जी वायरल लोड वायरल की लोड, बात लेकिन हम वो अननोन स्टेटस अननोन पे तो होगा। नहीं कर रहे होते हैं ना, जी जी। अननोन एचआईवी स्टेटस पे नहीं कर रहे होते। एक ये है, सही है। अब जैसे हेपेटाइटिस बी का है, हमने स्क्रीन नहीं करवाया हुआ तो हम उसको एचबीवी की लाइन पे तो नहीं ट्रीट कर सकते, उसके तो वायरल लोड के ऊपर तो नहीं कोई डिसीजन बेस कर सकते, अनलेस द स्टेटस इज नॉन ऑलरेडी। यानी एचआईवी स्टेटस हमें पता है या नहीं पता, और अगर पता है तो वायरल लोड पता है या नहीं पता, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा मैडम, इज इट क्लियर? अगर ये पेशेंट है, यस मैडम, अगर पेशेंट हाँ 34 वीक्स पे फॉर एग्जांपल इसका लास्ट वायरल लोड हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद लॉस्ट टू फॉलोअप है, हाँ, और फिर अचानक वो लेबर में आ जाती है, तो फिर इसका हम क्या अब कंसीडर इसमें करेंगे? इसमें जो लास्ट वायरल लोड है 34 वीक्स पे हुआ, फिर उस पे बेस करो, और फिर ये ओके भी देखो कि हाउ मच शी वाज एडहेरेंट टू टेक हर एडवाइज्ड प्रिस्क्राइब्ड एआरटी। तो अगर उसका ऑलरेडी वो हाई रिस्क उसमें था, हाई रिस्क कैटेगरी में आता है वायरल लोड, यू विल ट्रीट हर ऑन द लाइन ऑफ हाई रिस्क वायरल लोड। और अगर फर्ज किया उसका ऑलरेडी लो रिस्क कैटेगरी में था, लेस देन 50, तो फिर उसमें हमने ये उससे पूछना है कि क्या ट्रीटमेंट उसने रेगुलरली ली एज प्रिस्क्राइब्ड या नहीं। अगर वो ठीक है। ट्रीटमेंट रेगुलरली लेती रही और उसका वो लो रिस्क उसका वायरल लोड था और बीच में कोई और ऐसी इंटरवेंशन नहीं हुई, तो हम्म ऐसी सूरत में फिर हम उसको लो रिस्क वाली कैटेगरी में डालेंगे, और डेफिनेटली वी विल गेट अ फ्रेश वायरल लोड, क्योंकि पेशेंट लेबर में आई, डिलीवर हो गई, तो उसमें जी फिर बच्चे का भी वायरल लोड और मदर का भी वायरल लोड दैट विल बी रीटेस्टेड। और बाकी की जो नियोनेटल ट्रीटमेंट है या मदर की जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि पोस्टमार्टम तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज एज शी इज ऑलरेडी ऑन द लॉन्ग टर्म एआरटी, तो दैट हैज टू बी कंटिन्यूड वेदर द पेशेंट इज ब्रेस्ट फीडिंग और नॉट। तो ये लॉन्ग टर्म एक ट्रांसमिशन रिस्क को भी और पेशेंट के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है, अदरवाइज री इमरजेंस तो इसमें हो सकती है। तो इसमें उसके ऊपर उसके बेस लाइन उस लेवल पे फिर डिपेंड करेगा, बिकॉज एट द मैक्सिमम शी कैन डिलीवर विद इन 6 वीक्स ऑफ दैट 34 वीक्स लेवल। तो मैक्सिमम अगर ये 40 वीक्स पे भी कहती है, वरना अमूमन ऐसे पेशेंट के तो प्री टर्म लेबर में भी जाने के चांसेस होते हैं, ज्यादातर जो ड्रग्स पे होते हैं या जो ऑलरेडी एचआईवी स्टेटस जिन पे होता है, जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, विच एक्ट एज अ पोटेंट लेबर स्टिमुलेटर्स। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह जो रिलीज होती हैं, तो उसके साथ फिर हमने उसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा 3, अब इसलिए बहुत ज्यादा उसमें चेंज, अगर वो रेगुलरली लेती रही है मेडिसिन तो फिर बहुत ज्यादा चेंज आने के चांसेस शायद कम हों। अगर वो उसके बाद अर्ली लेबर में चली गई, मतलब आप कह सकते हैं कि 37 वीक्स पे अगर चली गई, तो दैट वाज जस्ट 3 वीक्स प्रायर टू हर गोइंग इनटू द लेबर। और ये तकरीबन वही टाइम है जिसमें हम रीमॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं।
2 से 4 हफ्ते के दरमियान में, अकॉर्डिंग टू द इनिशियल वायरल लोड लेवल्स। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैडम। अच्छा जी, अब और इसमें जो है प्री टर्म लेबर का हो गया, और इसमें जो अब बाकी जो चीजें आ जाती हैं कि अब वंस द पेशेंट गोज इनटू लेबर, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे? मैडम उसमें भी हम जाइडोविडिन देते हैं आईवी, लेबर में भी देते हैं, और कंटिन्यू ऑलवेज? इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या ऑलवेज हम उसमें आईवी ही देते हैं? आईवी देने की तो कुछ कंडीशंस है ना, वायरल लोड ज्यादा हो, या मैडम अगर वायरल नोट या अगर फिर 1000 अननोन से ज्यादा स्टेटस है, हो, तो ये सारी अननोन चीजें हैं। या स्टेटस होता पेशेंट को है नौजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो, नौजिया वॉमिटिंग जी, ज्यादा हो, तो आईवी की तो इवन प्रेगनेंसी में भी जरूरत पड़ जाती है। परसिस्टेंट नौजिया वॉमिटिंग है, आईवी पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा जी, रही, तो ऐसी सूरत में फिर हम आईवी ही देते हैं। सो देयर आर आईवी कंडीशंस फॉर देते गिविंग हैं आईवी जाइडोविडिन इन लेबर। उसमें हर एक 100% पेशेंट्स को हम नहीं देते, यूजुअली वी कंटिन्यू विद द ओरल थेरेपी। ओरल अगर थेरेपी, पेशेंट बट इफ स्टेबल है, लो रिस्क है, जी, हाई वायरल लोड नहीं है, तो ऐसी सूरत में, और पेशेंट को कोई नौजिया वॉमिटिंग उस तरह से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो हम क्यों नहीं दे सकते उसको ओरल? यस ठीक है, तो ओरल फिर हम उसको देंगे। अब once the baby is born, then what are the guidelines about the neonatal transmission? उसमें जो मॉनिटरिंग होती है, दो then it becomes the job of a neonatologist, but as obstetrician we should also know it. मैडम उसमें अगर उस नियोनेटोलॉजिस्ट पर उसमें बताएंगे ब्रेस्ट फीडिंग से ट्रांसमिशन 20 to 40% होती है, इफ यू नॉट ब्रेस्ट फीडिंग सो 15 to 20% चांसेस है कि वो ट्रांसमिशन होगी। हम्म। और उसके पेशेंट को, बच्चे बाद को हम टेस्ट कब करेंगे उसके, और उसको हम बर्थ एआरटी पेज का शुरू करेंगे बर्थ या पेज नहीं करेंगे? क्योंकि मदर एचआईवी के स्टेटस पॉजिटिव है और वो ऑलरेडी एआरटी ले रही है। देखेंगे 3 वीक्स 6 वीक्स पे, और अगर वो वेरी लो रिस्क है तो विजिट देते हैं। बेटा आपकी आवाज कट रही है लो बीच रिस्क है में। तो फिर 4 वीकली विद ज़िडोविडिन मोनोथेरेपी। हम्म। मैडम अब आ रही है? बस बीच में ब्रेक हो जाती है, वो फिर हेलो कंटिन्यूटी नहीं रहती। हाँ जी, बताइए। हेलो। मैडम, हम उसमें अगर 2 वीक, एक तो जी जी आवाज, 2 वीक ज़िडोविडिन मोनोथेरेपी होती है और 4 वीक ज़िडोविडिन मोनोथेरेपी होती है ना। इन इन लो इन रिस्क में लो ये रिस्क। होता है कि हम उसको 4 जी जी, हम्म। और हाई रिस्क में हम लोग वो फिर 4 वीकली विद कंबाइंड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं। 4 to 6 वीक्स। ठीक है, अगर 4 वीक्स जी तक हम कंबाइंड दे दें, तो उसके बाद आगे के 2 वीक्स जो हैं वो जाइडोविडीन हम अकेले भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो बेसिकली जो है, और ये थेरेपी एआरटी थेरेपी जो है इन अ नॉन एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट एंड ऑन एआरटी, उसमें हम एआरटी बच्चे लॉन्गर वाली शुरू कर लेते हैं विद इन 4 आवर्स ऑफ बर्थ। जी लेकिन जो बच्चे का जो वायरल लोड लॉन्ग स्टेटस है वो विद इन 24 आवर्स असेस हो जाना चाहिए। जो ठीक 10 है। वीक से ज्यादा है ना कंबाइंड एंटी रेट्रोवायरल हाँ। थेरेपी पे, उस पे हम हाँ। लोग करेंगे जी। हम्म। ठीक है, वो फिर हम इसमें करेंगे। और उसके अलावा अगर बच्चा एचआईवी पॉजिटिव आ गया, तो फिर उसमें लंबी थेरेपी चलती है, और ऐसे बच्चों में फिर ट्राइमेथोप्रिम भी हम देते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ निमोनिया हु टर्न्स आउट टू बी एचआईवी पॉजिटिव, बट आफ्टर 4 वीक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसलिए जो है वो बेबी की मॉनिटरिंग इस तरह से कंटिन्यू रहेगी, और उसमें अगर एचआईवी पॉजिटिव वो हो गया हुआ वायरल लोड, तो जाहिर है उसमें भी फिर हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि इसमें हम वायरल लोड को कम से कम करें। ठीक है, अब सपोज, अब जैसे इसमें को इन्फेक्शंस बहुत सारे होते हैं, को इन्फेक्शंस में एचबीवी, एचसीवी, और उसमें जो मलेरियल पैरासाइट्स और एसटीडीज वगैरह, इन सब के होने के चांसेस जरूर होते हैं। तो इसमें पेशेंट अगर एचपीवी या एचसीवी के साथ अगर को इन्फेक्ट हो, तो उसमें फिर हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? ज्यादा कॉमन चीजें यही हैं दो। मैडम ये मैंने नहीं पढ़ा था मैंने। कोई भी और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वाइस राम।
मैम HCV, मैम हर्पीस, HSV की बात करी मैम आप। मैम हर्पीस में HCV है नहीं, HCV है हेपेटाइटिस सी वायरस मैम और हेपेटाइटिस सी में तो मैम हम हेपेटाइटिस बी वायरस। मैम हेपेटाइटिस सी में हर्पीस जो उसकी मेडिकेशन है उसको हम स्टॉप करेंगे, विच इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, और मैम उसको हम HIV वायरल लोड के बेस पे ही कौन सी डिसाइड हैं जो सेफ इन प्रेगनेंसी नहीं है? करें। HPV ये अगर फर्ज किया पेशेंट इज अ नॉन हेपेटाइटिस बी वायरस कैरियर, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ड्रग सेफ है या नहीं है? और दूसरी चीज ये कि उसमें हमें किस टेस्ट से पता चलेगा कि उसमें कितना इन्फेक्टिविटी स्टेज ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस है या नहीं है? उसमें फिर हमें एडिशनल टेस्ट क्या करवाने पड़ेंगे? क्योंकि नॉर्मली तो हम HIV में जस्ट रूटीन की स्क्रीनिंग करवाते हैं। जी नाज़िया। मैडम एलाइजा कराएंगे? हाँ, एलाइजा तो कराएंगे ही, लेकिन और क्या टेस्ट करवाएंगे जिससे हमें इन्फेक्टिविटी का पता चलेगा? मैम PCR। नहीं, वो तो हमें वायरस, वो तो हमें एंटीजन का बता रहा है। अब एंटीजन जो होता है, एक हेपेटाइटिस बी वायरस के डिफरेंट एंटीजेनिक पोटेंशियल्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? सरफेस एंटीजेंस होता है, कोर एंटीजेंस होता है, ई एंटीजन होता है, एंटीजन। जी। ये सारे होते हैं। तो तो इन्फेक्टिविटी हमें कैसे पता चलेगी? ई एंटीजन से। अब ये सारे एंटीजेंस हैं, ठीक है। तो ई एंटीजन जो है वो इसका मतलब है कि द पेशेंट इज इन इन्फेक्टिव स्टेज, कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन टू द अदर्स। ये ज्यादा विरुलेंट एंटीजन समझा जाता है। अब अगर हम इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस एंटीबॉडीज कर लें, यानी ई एंटीजन है ना, अगर ई एंटीबॉडीज भी अगर हम असेस कर लें तो वो इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि अब तो एंटीबॉडीज बन गई विच कैन बेसिकली फाइट अगेंस्ट दीज विरुलेंट एंटीजेंस। इसी तरह से जो हम हेपेटाइटिस सी वायरस में हम करते हैं, बेसिकली हम एंटी HCV टेस्टिंग करवा रहे होते हैं, विच इज एंटीबॉडी टू द हेपेटाइटिस सी वायरस, जो कि एक नॉन इन्फेक्टिव पेशेंट में भी पॉजिटिव आ सकती हैं। यानी पेशेंट को हुआ, एंटीबॉडीज बन गई, एंड नाउ दिस इन्फेक्शन इज कवर्ड, is cured by her own immune system. But the condition is not that simple when it coexists with the HIV, because already the process of formation of the antibodies is slow due to immunosuppression in the patients with HIV. तो इसलिए इन इन्फेक्शंस की जो विरुलेंस है या प्रोग्रेशन है या उनके जो आगे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं when these coexist with HIV। यानी इसमें अगर हेपेटाइटिस बी की हम बात करें तो लिवर सिरोसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिवर फेलियर, इन सब चीज़ों की एंड प्रोग्रेशन जो है वो ये सब चीज़ें जो हैं ये बढ़ जाएंगी। तो इसलिए हमें उसको उस पर भी नज़र रखनी पड़ती है। एंड यूजुअली हम ये जो टिनोवोफर देते हैं, दिस इज आर ट्रीटमेंट फॉर दिस हेपेटाइटिस वायरस आल्सो, टिनोवोफर। क्योंकि तो ये तो मैडम अब इसमें जब हम HIV को ट्रीट कर रहे होते हैं, व्हेन इट कोएग्जिस्ट विद द हेपेटाइटिस बी वायरस, तो हमारा ज्यादा फोकस HIV वायरल लोड पे होता है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट उसकी चल रही होती है हेपेटाइटिस बी वायरस की, कुछ ट्रीटमेंट से हम इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइक टिनोवोफर, इट इज इक्वली इफेक्टिव अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये जो ART वाली ट्रीटमेंट है ये किसी हद तक हेपेटाइटिस बी वायरस को भी ट्रीट कर रही होती है, बट सिचुएशन कैन बी डिफरेंट व्हेन इट इज हेपेटाइटिस सी वायरस। तो हेपेटाइटिस सी वायरस में जो हमारे पास सेफ ऑप्शन है वो क्या है प्रेगनेंसी में? इंटरफेरोन हम देते हैं प्रेगनेंसी में या नहीं देते? जी, एनीवन? इंटरफेरोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते? ओके। इंटरफेरोन होते हैं 3 तरह के, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा नहीं दे सकते, बीटा दे सकते हैं, गैमा बी नहीं दे सकते। लेकिन हम यूजुअली इंटरफेरोन टू बी ऑन सेफर साइड हम नहीं देते प्रेगनेंसी में फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस। तो उसमें वही जो टिनोवोफर वाली ऑप्शन है वो ही उसमें ज्यादा ऑप्ट करते हैं। अब अगर ये हेपेटाइटिस सी वायरस हो तो उसमें
अदरवाइज तो कोई ओरल ट्रीटमेंट तो अवेलेबल ही नहीं है, इवन इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है. सो हियर comes the role of directly acting antiviral. ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि वायरस को पर्टिकुलरली टारगेट करती हैं. तो these are just very new drugs जो कि प्रेगनेंसी में सेफ समझी जाती हैं. सो फॉर अकॉर्डिंग टू द ट्रायल एंड द मतलब जो पेशेंट ट्रायल है उनके हिसाब से, तो ये डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल जो हैं, जिनको हम DAA के नाम से बुलाते हैं, ये सेफ समझी जाती हैं और इनको हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, अगेन टू डिक्रीज द वायरल लोड. लेकिन अगेन हमारी जो प्रायोरिटी होती है व्हेन इट कोएग्जिस्ट विद द HIV, के हम HIV के वायरल लोड पे फोकस करें. और इसमें जो हम मोड ऑफ डिलीवरी ऐसे पेशेंट में डिपेंड करता है, वो अगेन HIV वायरल लोड पे डिपेंड करता है. हम HCV या HBV के वायरल लोड को इग्नोर कर देते हैं उस सूरत में. इज इट क्लियर? डॉक्टर हेलो. डॉक्टर इसमें हेलो जी जी डॉक्टर, जी. अगर HIV के साथ इसमें मतलब हेपेटाइटिस C पॉजिटिव आता है तो इसकी मैनेजमेंट पे तो कोई फर्क नहीं आ रहा ना, मतलब हम नहीं HIV आ की रहा, वही मैनेजमेंट. नहीं आ रहा. लेकिन इसमें बाज दफा ऐसा होता है कि इसमें देखो, अगर वायरल लोड उसका कम हो गया, यानी हेपेटाइटिस HIV का वायरल लोड काफी कम है, या जैसे अनडिटेक्टेबल, इसको यू क्राइटेरिया कहते हैं, जो अनडिटेक्टेबल वाली रेंज में आ जाए, क्योंकि उसमें रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन फिर बहुत मिनिमम हो जाता है, तकरीबन ना होने के बराबर. तो अगर वो अनडिटेक्टेबल रेंज में आ जाता है बाय एन इफेक्टिव ART रिजीम, तो ऐसी सूरत में अगर HCV का वायरल लोड ज्यादा हो तो तब कम्स द रोल ऑफ DAA. जी, अगर उसका ठीक है. मतलब हाँ, हेपेटाइटिस C का अगर ज्यादा लेकिन हो तो अगर HIV वायरल लोड ज्यादा है तो हमारी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होती है टू फोकस ऑन लोअरिंग द अच्छा. HIV वायरल लोड, क्योंकि वो एक प्राइमरी कल्प्रिट है और ज्यादा मसले वाली बात है. ठीक है. बाकी जो ब्रेस्ट फीडिंग का ताल्लुक है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी डेफिनेटली वायरल लोड ट्रांसमिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है. वायरल लोड के साथ और उसमें अगर हम बच्चे को दे रहे हैं, यूजुअली इसमें हम एक तो इमीडिएट बाथ ऑफ द बेबी एट बर्थ, फिर उसके बाद उसमें अगर वायरल लोड बहुत ज़्यादा हाई था तो उसमें जल्दी कॉर्ड क्लैम्प करते हैं, और उसके अलावा फिर ART शुरू करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, एंड पेशेंट को फिर हम ब्रेस्ट फीड नहीं करवाते, सॉरी बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाते. लेकिन अगर वायरल लोड बहुत कम हो एंड द पेशेंट हैज टेकन एन इफेक्टिव ART at least 10 weeks prior to the time of birth, then she can breastfeed. Because in some areas cost effectiveness issues ऐसे होते हैं, या एक बहुत रिमोट एरियाज जहाँ पे ये चीज़ों की अवेलेबिलिटी इस नॉट पॉसिबल, तो वहाँ पे हमें लामहला ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, यानी ब्रेस्ट फीडिंग वाली चीज़ भी अलाउ करनी पड़ती है. लेकिन उसमें डेफिनेटली रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इज मोर, तो वहां पे फिर ART बच्चे को साथ साथ दी जाती है. और उसके अलावा मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की जो है वो उसमें ऑप्शन होती है, यानी एट द मोस्ट टिल 6 months ऑफ एज. और इसमें एक और जो बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है ब्रेस्ट फीडिंग में, ऐसे बच्चों में जो जिनकी मदर्स HIV पॉजिटिव हो, मॉनिटरिंग तो हम कर ही रहे होते हैं, हर 2 से 4 हफ्ते बाद हम बच्चे का भी HIV टेस्टिंग PCR के साथ हम कर रहे होते हैं. लेकिन इसमें जो एक ज़रूरी चीज़ है वो ये कि ART तो हम दे ही रहे होते हैं, लेकिन उसमें बच्चे को एडिशनल सॉलिड फूड नहीं देते. यानी ये जो 6 महीने की या 3 या 6 महीने की जितनी भी ब्रेस्ट फीडिंग है, उसमें बच्चे को सॉलिड फूड नहीं हम देते, क्योंकि उसमें रिस्क, अगर हम कंबाइन करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को सॉलिड फूड, एडिशनल फूड जो देते हैं बच्चे को, तो उसके साथ रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाता है. कैन एनीवन आंसर के क्यों बढ़ जाता है? हालांकि सॉलिड फूड तो बाय माउथ ही देना, उसमें तो सॉलिड फूड के साथ तो मदर का अगर ना भी कोई कांटेक्ट हो. एनीवन? इसलिए कि जब हम सॉलिड फूड देते हैं तो इसमें जो है वो म्यूकोजल एब्रेजन्स ऑफ होल GI ट्रैक्ट होने के चांसेस होते हैं. तो वो जो म्यूकोजल एब्रेजन्स होती हैं, वो बच्चा फीड भी कर रहा है तो उसके साथ साथ उसमें रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा.
तो इसलिए फिर ऐसे बच्चों में जो न्यू बॉर्न होते हैं उनमें ब्रेस्ट फीडिंग के साथ सॉलिड फूड को कंबाइन नहीं किया जाता। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जरा डिस्कस कर लेते हैं डिस्कॉर्डेंट कपल। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। सपोज अब उसका हस्बैंड जो है वो अब नेगेटिव हो गया, उसका हस्बैंड जो है वो नेगेटिव हो गया। दिस इज डिस्कॉर्डेंट कपल एग्जाम्पल, that wife is positive but the husband is negative, and it can be vice versa also. तो अब हम क्या करेंगे? स्क्रीनिंग, मतलब एक तो हमने स्क्रीन कर लिया, HIV टेस्टिंग कर ली, वो नहीं है, बट दिस स्क्रीनिंग शुड बी रिपीटेड आफ्टर एवरी 3 months, क्योंकि बाज़ दफा विंडो फेज होता है कि वो पॉजिटिव नहीं आता। तो उस सूरत में फिर हमें जो है वो उसको रेगुलर वो जो है उसकी एंटीजन टेस्टिंग, क्योंकि जो हम HIV स्क्रीनिंग करते हैं उसमें HIV टेस्टिंग एंटीजन टेस्टिंग करते हैं, एंड लेटर ऑन हम एंटीबॉडी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। यही 2 टेस्ट होते हैं जिसके ऊपर ये बेस करता है। तो इसमें जो है वो हमने उसको करना होता है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू एडवाइज देम कॉन्डम प्रोटेक्टेड क्वाइटस। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो कॉन्डम प्रोटेक्टेड क्वाइटस से ही है तो फिर ऐसी सूरत में हाउ शी विल बिकम प्रेग्नेंट अगेन, क्योंकि हो सकता है अब इसका हस्बैंड जब आया हो तब ये HIV नेगेटिव हो, ड्यू टू सम इंजेक्शन, किसी भी वजह से उसको इंजेक्शन लगा समवेयर फॉर नॉजिया एंड वॉमिटिंग सपोज, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंजेक्शन शी बिकेम HIV पॉजिटिव और हस्बैंड जो है वो नेगेटिव है। सो कंसिडरिंग दिस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो उसमें अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी, अब ये प्राइमरी ग्रेविड है तो सिर्फ एक ही बच्चे पे तो इक्तफा नहीं करेगी। सो फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी व्हाट कैन बी द ऑप्शन, सेफ ऑप्शन, बिकॉज हस्बैंड इज नेगेटिव एंड शी इज पॉजिटिव। एक तो वो ART ले रही है, और क्या हो सकती है? उसमें फिर अब जाहिर है कॉन्डम प्रोटेक्टेड क्वार्टर्स के साथ तो कंसीव नहीं कर सकती, so it has to be condomless for only that fertility window time period but with pre-exposure regime। यानी हस्बैंड जो है वो एक्सपोजर होने के चांसेस है, लेकिन फिर वो पहले से ही एक गोली रोज की एंटीवायरल की सिंगल एजेंट की खाना शुरू करेगा कम से कम उससे महीना पहले, और फिर वो उस फर्टिलिटी विंडो के दरमियान में कॉन्डम लेस क्वाइटस जो होगा वो उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड देन अगेन द मॉनिटरिंग विल बी गोइंग ऑन। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि उसमें जो वाइफ की जो है वो उसमें खुद जो है वो इंसेमिनेशन कर दी जाए, ठीक है, बिकॉज द हस्बैंड इज नेगेटिव। लेकिन चूंकि कॉन्डम लेस क्वाइटस नहीं करने का वो एक प्रोटेक्शन, तो ये ज्यादा बेहतर प्रोटेक्शन तो यही है, वरना प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस आप दें और उसमें कॉन्डम लेस जो है वो क्वाइटस अलाउ करें इन द फर्टिलिटी विंडो एंड लेटर ऑन उसमें मॉनिटरिंग। दूसरा तरीका ये है कि विजाइनल इंसेमिनेशन, और उसके साथ ये 2 तरीके फिर ऐसे होंगे। बट इफ द हस्बैंड इज पॉजिटिव एंड द वाइफ इज नेगेटिव, तो उसमें हमारे पास क्या तरीका होगा? उसमें स्पर्म वॉश, ठीक है, हस्बैंड पॉजिटिव है और वाइफ इज नेगेटिव, तो उसमें फिर स्पर्म वॉशिंग के साथ फिर हम इसमें अगेन इंसेमिनेशन कर सकते हैं, अदरवाइज कॉन्डम तो फिर भी यूज करने ही करने हैं। क्यों? तो स्पर्म वॉश के साथ फिर उसको इंसेमिनेट किया जा सकता है। सो दीज आर द बेसिकली मैनेजमेंट। और दूसरी चीज ये कि उसमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का फिर रोल आ जाता है। पोस्ट एक्सपोजर, when the husband and the wife are living together and there are chances that one negative partner can transmit the infection to the other, one positive partner can transmit infection to the other negative partner, तो वहां पे फिर प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का रोल आ जाता है। प्री एक्सपोजर पहले से आपको पता है, इसलिए आप पहले से ही वो करना शुरू कर दें एक्सपोजर होने से पहले, लेकिन एक्सपोजर होने के बाद चीजों का पता चला तो फिर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। इसकी रिजीम फिर MDT वगैरह के साथ हम मिलके जो है वो तय करते हैं, सारे जो मेडिसिन और इन्फेक्शन डिजीजेस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ, एंड दैट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब दूसरी चीज ये कि
क्या आप सबके एरियाज में HIV की स्क्रीनिंग आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि देखो HIV स्क्रीनिंग इज मैंडेटरी, HIV नहीं बल्कि किसी भी डिजीज की स्क्रीनिंग इज कंसिडर्ड टू बी मैंडेटरी जब उसका प्रेवलेंस रेट इज मोर देन 5%. तो आई डोंट थिंक so far it is more than 5%, but in high risk population it should be mandatory. या कम से कम कोई आपने सर्जिकल प्रोसीजर करना हो तो उससे पहले तो जरूर करवाएं, क्योंकि उसमें बाज दफा पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है और पेशेंट अपनी हाई रिस्क बिहेवियर्स वाली हिस्ट्री उस तरह से दे भी नहीं रहे होते, तो एटलीस्ट सर्जिकल प्रोसीजर से पहले। लेकिन जिनमें रिपीटेड रिकरेंट वेजाइनल इन्फेक्शन हो या जिनमें बहुत ज्यादा बार बार इन्फेक्शन होते हों अदरवाइज भी, और जैसे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी में है वहां पे तो जरूर करवा लें। ठीक है, या जिनमें STDs वाली चीजें स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ जाती है वहां पे जरूर करवा लें। तो हाई रिस्क पॉपुलेशन में तो जरूर करवाएं। ठीक है, चलें जी, आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड सो फार। और इसमें अब कोई ऐसा रह तो नहीं गया, तो हम अब क्लास अपनी स्टॉप करते हैं यहाँ पे। आई होप देयर इज नो क्वेश्चन लेफ्ट नाउ, इज इट सो? ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मेरा ख्याल है कि पेरीनेटल इन्फेक्शंस वाला ही पूरा स्पेक्ट्रम हम कवर कर लें वंस वी आर डूइंग इट। तो इसमें और कौन से इन्फेक्शंस हैं जो आपके भी रहते हैं कवर होने वाले? इन माय ओपिनियन दीज आर द हेपेटाइटिस बी एंड सी। इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग एल्स तो वो हम देख लेते हैं। मैम हेपेटाइटिस HPV भी, वॉट्स भी। क्या? मैम वॉट्स HPV। HCV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, और क्या चीज मैम आप कह रही वो हो? HPV, वॉट्स कह रही है, वॉट्स HPV। वॉट्स कह रही हैं। वॉर्ड्स, अच्छा वॉर्ड्स, ठीक है ठीक है, HPV, ओके ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं फिर क्या उसमें कवर करते हैं अगली दफा। ठीक है, ओके, अब हम क्लास स्टॉप करते हैं। ठीक, ओके, अल्लाह थैंक यू हाफिज। मैम।